ہر کوئی اپنے مرضی کے مطابق جواہرات نہیں پہن سکتا، ہر کسی کا ذائقہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو آپ بھی ادھر ادھر بھٹکنا چھوڑیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں یعنی گوہروں کے کرشموں سے استفادہ کیجیے اور آج ہی ہم سے ربط پیدا کیجیے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں پریشان ہیں، پریشانی پیسوں کی ہو، پریشانی صحت کی ہو، آپ شادی بیاہ کے بارے میں پریشان ہو، بار بار تلاش کرنے کے بعد بھی نوکری نہیں مل رہی ہو، کاروبار میں ترقی چاہتے ہوں یا پھر بیرونی ملک جانا چاہتے ہوں، یا پھر کوئی بھی مشکلات ہوں، اس کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں۔ راسک جیمز اینڈ جویلرز، راسک جیمز اینڈ جویلرز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواہرات کا کرشمہ اپنے میزبان محمد مظہر قادری کے ساتھ۔ آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا دلی خیر مقدم ہے اس پروگرام میں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر ایم رضا صاحب تشریف فرما ہیں، جنہیں جواہرات کی دنیا میں کنگ آف جیمز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ بہت ہی ایمیننٹ جیمولوجسٹ ہیں اور آپ نے کئی ایوارڈز حاصل کیے ہیں، گاندھی نیشنل پیس ایوارڈ، شیوانندی ایوارڈ اور بھی ایسے بے شمار ایوارڈز آپ کو ملے ہیں۔ آپ عالمی شہرت یافتہ جیمولوجسٹ ہیں۔ انشاءاللہ ان کے ساتھ ہماری یہ نشست ہوگی، آپ کے مسائل پر ہم بات کریں گے، آپ سوال کر سکتے ہیں اور جوابات اس کے لے سکتے ہیں، اپنے مسائل کے حل یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ایم رضا صاحب آپ کا استقبال ہے پروگرام میں، مرحبا، اہلا و سہلا۔ شکریہ جناب، شکریہ۔ اور آج اس ماحول میں سارے ہندوستان میں افراتفری کا عالم ہے، کرنسی بدل گئی ہے، لوگوں کی قسمت بھی ایسی بدل جاتی کرنسی کے ساتھ تو مالا مال ہو جاتے۔ آج پریشانی حالات حاضرہ میں ہے، ایسے ماحول میں عام آدمی پریشان ہے، تو اس کے لیے ایم رضا صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں ایسے حالات میں کیا کیا جا سکتا ہے اور آنے والے حالات کس طرف لے جائیں گے، ہمیں رخ کدھر ہوگا۔ اور سب سے پہلے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایم رضا آپ لوگوں کا پروگرام جواہرات کا کرشمہ میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ مظہر صاحب کا جو سوال ہے، آج کل کا ماحول پریشانی کا ماحول، مشکلات کا ماحول، عام جنتا کے لیے، عام لوگوں کے لیے پریشانی کا ماحول ہے۔ ایک بڑی کہاوت ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جب دریا کا پانی سوکھ جائے یا تالاب کا پانی سوکھ جائے، جو مچھلیاں رہتی ہیں ان کا حال بے حال ہو جاتا ہے، لیکن جس میں جو مگرمچھ ہوتی ہے، جس کو پانی رہنے سے بھی زندگی ہے، پانی کے بعد مٹی میں بھی دنیا کر سکتی ہے۔ اس کا مثال کا مطلب یہ ہے، مچھلیاں سے مثال ہوتی ہیں جو عام لوگ ہیں، جو مڈل کلاس ہیں، جو چھوٹا چھوٹا پیسہ جمع کر جو رکھے تھے، وہ لوگوں کی حالت پریشانی کی حالت ہے، مشکلات میں ہیں، لوگوں کی موت ہو رہے ہیں، کتنے اموات ہو چکے ہیں، ڈسٹرب ہیں، لوگ سکون کھو چکے ہیں، مشکلات میں پھنس چکے ہیں۔ جہاں پر بھی جائیے کیوز دیکھتے ہیں تو کیو میں جو دکھتے ہیں ترکاری بیچنے والے، آٹو رکشہ چلانے والے، ٹیکسی ڈرائیورز، کار چلانے والے، چھوٹے موٹے جو جاب کرنے والے، یہ سارے پریشان لوگ جو ہیں کیو میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جو مگرمچھ جو ہوتے ہیں بلیک منی والے، ایک آدمی بھی کیو میں دکھائی نہیں دے رہا ہے، ہر کسی کو معلوم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ چل رہا ہے، کرنسی بدلا رہے ہیں، چینج کر رہے ہیں، ایکسچینج کر رہے ہیں، ہر ذریعے چل رہا ہے، پتہ نہیں کیسے چل رہا ہے، کیونکہ بڑے لوگ کیسے بھی زندگی آگے بڑھا سکتے ہیں، لیکن چھوٹے لوگوں کے لیے پریشانی کا مرحلہ ہے۔ ہم نے لاسٹ ہفتے میں بھی ذکر کیا تھا اس کے بارے میں کہ ہمارا جو علم ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ ہم جو بتائے تھے کہ انہیں پریشانیاں اور بڑھیں گی، مشکلات بڑھیں گی۔ تو ابھی سے کیا ہوگا، 15 نومبر سے لے کر 15 دسمبر تک، ابھی جو اسکارپیو میں جو ہے، اسکارپیو کا جو سائن ہوتا ہے بچھو، اس گھر میں بیٹھا ہوا پہلے سے سیٹرن، زحل بیٹھا ہوا ہے، ساتھ میں ابھی ملے ہوئے ہیں آفتاب، سورج ملا ہوا ہے، کیونکہ ستاروں کی جو گردش ہوتی ہے، ایک نظام شمسی جو ہوتا ہے، جو سولر سسٹم جو ہوتا ہے، ستاروں کا جو گردش میں آنا، اس گردش کا جو ابھی ہم بتائیں تو دونوں کا جو سفر ہوتا ہے ستاروں کا، کیونکہ جس طرح ہمارے عام لوگوں کا جو سفر ہوتا ہے، انسانوں کا سفر ہوتا ہے، جس طرح ہر چیز کا ایک سفر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب کوئی چیز بنائی ہے، ہر چیز کا جو ہے ایک سفر ہوتا ہے، اسی طریقے سے ستاروں کا سفر ہوتا ہے۔ ابھی کیا ہوا ہے، 2 ستارے ملے ہوئے ہیں، سیٹرن اور سن، یہ رہیں گے 2016 دسمبر 15 تاریخ تک، جس کا پرینام کیا ہونے والا ہے، پریشانیاں بڑھنے والی ہیں۔ سن کو کہا جاتا ہے ایڈمنسٹریٹر، نظام، حکومت چلانے والے، گورنمنٹ، سرکار، یہ ساری چیزیں چلانے والے جو ہوتا ہے سن۔ سیٹرن کو کہا جاتا ہے جنتا،
पब्लिक, लोग, क्योंकि बाप बेटे का रिश्ता होता है दोनों के बीच में। बाप का मकाम होता है गवर्नमेंट का, बेटे का मकाम होता है लोगों का। तो अभी क्या होता है, दोनों में जमती नहीं है, तो मुश्किलात और बढ़ने वाली हैं, परेशानियां बढ़ने वाली। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। देखिए, करने वाले ज़ात सिर्फ खालिक कायनात की ज़ात है, लेकिन एक हमारा इल्म होता है, क्योंकि एक निज़ाम है, अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया दुनिया को चलाने के लिए। इसके हिसाब से ये परेशानियां और बढ़ने वाली हैं, बहुत से एहतजाज भी होने वाले हैं, मुश्किलात होने वाले हैं, परेशानियां होने वाली हैं। मुश्किलात बढ़ेंगे, गवर्नमेंट के लिए भी, पब्लिक के लिए भी बढ़ेगी। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है लोगों से। बहुत से हज़ारों लोग चाहने वाले हैं, क्योंकि जहाँ पर मिलते हैं तो प्यार दिखाते हैं। साहब, डॉक्टर साहब का प्रोग्राम देखते हैं, अच्छा प्रोग्राम लगता है, हम आपके फ़ैन हैं, हम आपके चाहने वाले हैं, सेल्फी लेते हैं। उनसे हमारी एक गुजारिश है, ये जो मोहब्बत है, हम जो बता रहे हैं उसके ऊपर अमल कीजिएगा। आप जो भी रोज़मर्रा के ज़िंदगी के लिए जो ख़रीदना चाहते हैं, छोटे लोगों से कारोबार कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ मैं, छोटे लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, छोटे लेवल के भी होते हैं, बड़े लोग भी होते हैं। छोटे लेवल के जो लोग हैं, मैं बयान नहीं कर सकता, इतने परेशान हैं, आंखों में आंसू जारी हैं, मुश्किल में फंसे हुए हैं, कारोबार ख़त्म हो चुके हैं। अभी हम सुबह जब पेपर में देख रहे हैं तो तेलंगाना के लिए कितने 100 करोड़ का नुकसान हो चुका है एक हफ्ते के अंदर। ये तेलंगाना गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, जो दिल्ली में जो पार्लियामेंट में जो दी गई है, इतना नुकसान हुआ है सिर्फ तेलंगाना का लेकर। अभी हिंदुस्तान में 29 स्टेट है, मेरे ख्याल से 30 स्टेट है अभी तेलंगाना मिलाकर। इतने स्टेट अगर हिसाब लगाएंगे तो हज़ारों करोड़, लाखों करोड़ का नुकसान हुआ है। तो सभी को मालूम है, और थोड़ा फ़ायदा भी हुआ है गवर्नमेंट को, लेकिन पब्लिक परेशान है, मुश्किल में। ऐसे समय में हम क्या करना है, आम लोगों का साथ देना है। जो सब्ज़ी खरीदते हैं, तरकारी खरीदते हैं, ट्राई कीजिएगा। जो छोटा दुकान लगाकर बैठे हैं, जो फुटपाथ में, जो गाड़ी में ढकल कर जो तरकारी बेचते हैं, उनसे कारोबार कीजिएगा। क्योंकि आप तो माल में जाते हैं, कार्ट स्वाइप करते हैं, माल खरीद लेते हैं। बड़े आदमियों की ज़िंदगी कैसे भी चल जाती है, आगे बढ़ जाते हैं। माल रखने वाला कोई छोटा आदमी नहीं होता। माल वाले खफा ना हो, क्योंकि हमारा प्रोग्राम देखने वाले बड़े लोग भी होते हैं, खफा ना हो, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं आपकी ज़िंदगी कैसे भी आगे बढ़ सकती है। लेकिन जो 50 दिन का जो टाइम दिया गया है, छोटे लोगों के लिए बहुत कठिन का मरहला है, बहुत परेशान है, डिस्टर्ब हैं। जो भी आपके जो कारोबार होते हैं, जो 100s में खरीदते हैं, क्योंकि आपको जो ATM में पैसा निकाल रहे हैं, 100s मिल रहे हैं, आपको 20s मिल रहे हैं, 10s भी मिल रहे हैं, तो उन पैसों से आप चाहे दूध खरीदिएगा, चाहे तरकारी खरीदिएगा, सब्जी खरीदिएगा, खाने पीने रोज़मर्रा की चीज़ें मतलब चूकेंगे नहीं। पैसा हो ना हो, किस तरीके से भी खरीदना है, ज़िंदगी को चलाना है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। जब तक तुम खाओगे नहीं, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो ऐसे आलम में, ऐसी हालत में छोटे लोगों से थोड़ा कारोबार कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। आप अपने एरिया में देख लीजिएगा, अपने पड़ोस में देख लीजिएगा, जो छोटे लोग हैं, जो मुश्किल में फंसे हैं, उन लोगों का साथ दीजिएगा। जो परेशान फंसे हुए हैं, टेंशन में हैं, उनको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। देखिए, ये जो सिस्टम बनाया हुआ है, आगे आने वाले नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत मुफीद रहेगा, फ़ायदा रहेगा। एक अच्छा हिंदुस्तान बन सकता है, दुनिया में नंबर 1 आ सकता है आगे के लिए। लेकिन अभी का जो मरहला है, बड़े मुश्किल का मरहला है। इस मरहले में छोटे लोगों का साथ दीजिएगा। यहाँ छोटी सी मिसाल दे देता हूँ मैं, बाद में फैसला आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। एक हस्बैंड और वाइफ, शोहर और बीवी एक बच्चे के साथ सफ़र करते हैं। जब सफ़र में जाते हैं तो रास्ते में दूध ख़त्म हो जाता है बच्चे के लिए। तो सामने देखते हैं बड़ा होटल रहता है, 5 स्टार होटल रहता है। जाते हैं, कहते हैं कि बच्चे को भूख लगी, थोड़ा दूध चाहिए। तो वो कहते हैं हमारे यहाँ पे एक गिलास की कीमत है 500 रुपये। तो हस्बैंड क्या कहता है, एक पैकेट 50 रुपये मिलने वाली है, लेकिन आप 500 बोल रहे हैं, हमारे होटल में 500 रुपये में दूध बिकेगा, मर्जी आपकी, लेना ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं। 500 रुपये देते हैं, एक गिलास दूध लेते हैं, बच्चे को पिलाते हैं, बाहर निकलते हैं, फिर सफ़र जारी हो जाता है। रास्ते में देखते हैं कि एक झोपड़ी वाला है, चाय बेचता है। जहाँ पर दूध खत्म हो जाता है, बच्चे को भूख लगती है, तो वहाँ पर उतर जाते हैं, कहते हैं कि बच्चे को दूध चाहिए। तो वहाँ पे जो चाय बेचने वाला होता है, हस्बैंड और वाइफ, मतलब शोहर बीवी दोनों मिलकर ताज़ा दूध निथारते हैं, गाय से निथार कर गर्म करके देते हैं कि बच्चे को पिलाओ। बाद में कहते हैं थोड़ा साथ में रख लीजिएगा, सफ़र की थकान, मतलब सफ़र पूरा होने तक बच्चे को काम आ जाएगा, सफ़र में परेशानी नहीं होगी। ये पूरा होने के बाद पैसा निकाल कर देने जाते हैं, तो कहते हैं कि हम इतने भी मतलब बेगैरत नहीं है कि बच्चे का पैसा लें। हम बच्चों को जो दूध पिलाते हैं, पैसा हम वो लेने वाले नहीं है। अंदाजा लगाइएगा, बड़ा आदमी कौन है? सुभान 5 स्टार वाला बड़ा आदमी है, या जो चाय बेच रहा है, छोटी सी पेटी लगाकर, छोटा सा दुकान लगाकर जो चाय बेच रहा है, क्या वो बड़ा आदमी कहते हैं या वो आदमी बड़ा है? आप अंदाजा लगा लीजिएगा। मतलब चाय बेचने वाले रास्ते में, फुटपाथ में पैसा नहीं लेते, बच्चे का दूध एक बॉटल में भर के देते हैं, एक एक्स्ट्रा गिलास देते हैं कि रास्ते में परेशानी ना हो, इसको रख लीजिएगा, स्टॉक में रख लीजिएगा।
तो पैसा हमारे यहाँ बच्चों को जो दूध पिलाते हैं हम उसका पैसा का चार्ज नहीं करते। अंदाजा लगाइएगा, छोटे लोग जितने भी आपके करीब में हैं, आपके करीब में हैं, उनको साथ कीजिएगा। एक हमारी रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है, बहुत अच्छी, लाखों लोग देख रहे हैं, अगर हमारा कहना अगर हजारों में अगर मान लेंगे, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में परेशानियां नहीं होंगी, हर कोई मुश्किल से बच सकता है। लेकिन हमारा जो इल्म बताता है आने वाले 2017 मार्च तक परेशानियां रहेंगी, फाइनेंशियल मैटर्स में मुश्किलात रहेंगे। क्योंकि हम जहां पर भी देखें, मैं बता देता हूं, मैं कोई एक सियासतदान नहीं हूं, मेरे को कोई पॉलिटिकल से कोई ना सरोकार है ना कोई लेन देन है। मैं एक समाज सेवक हूं, लोगों की सर्विस देने वाला, लोगों की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं हम लोग, तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो लोगों की परेशानी होती है हम उसको बयान करना है, जाहिर करना है। लोग रो रहे हैं, दुनिया भर में क्या होता है, एक माहौल होता है, औरतों को खर्चे के लिए पैसा देते हैं। दुनिया भर में अगर हिसाब लगाएंगे 70% औरतें घर में रहती हैं, 30% काम को जाती हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन जो घर में औरतें रहती हैं तो शौहर क्या करता है, जैसे घर के बाहर निकलते हैं तो हर कोई क्या करता है, 500 रुपये 1000 रुपये खर्च के लिए देता है, ये रखो खर्च के लिए रखो। तो औरतें क्या करती हैं, जुगाड़ने के लिए, जमाने के लिए 500 को बाजू रख देती हैं, जो चेंज होता है, जो चिल्लर जो खर्च होता है उसमें घर चला देती हैं। तो ऐसे औरतें बहुत सा पैसा जमा कर रखी हैं, जो बेहाल हैं, परेशान है, डिस्टर्ब हैं। ऐसे हमारे बहनें बहुत सी लोग देख रही हैं, खातन देख रही हैं। डरिएगा मत, अगर पैसा रखेंगे तो 50 दिन के बाद बेकार हो जाएगा। शोहर को बोल दीजिए, बता दीजिए कि हमने इतना जमा कर रखा है। अगर रखा है अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर रखा है तो बेकार जाने से बता दीजिएगा जो भी पैसा रखा हुआ है। वो लोग बहुत परेशान है, डिस्टर्ब हैं, क्योंकि हमारे पास जो लोग आ रहे हैं हम बयान नहीं कर सकते, इतना उनका रोना होता है, पता नहीं ऐसा क्यों कर दिया। करने वालों को तरीके बहुत थे, ये करते। बहरहाल गवर्नमेंट बैठी हुई है, हिंदुस्तान को चलाना है, एक अच्छा हिंदुस्तान बनाना है, स्वच्छ भारत बनाने के लिए आगे सरकार बढ़ी है, तो हम लोग साथ देना है, उनका साथ देंगे। लेकिन हमें चाहिए कि हमारे दरमियान में जो परेशान लोग हैं, जो मुश्किल लोग हैं, उनका हम थोड़ा साथ देंगे, इंशाल्लाह ताला मुश्किलात कम हो जाएंगी। आने वाले दिन में अच्छा हिंदुस्तान उभर कर आएगा, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। जो भी औरतें जो पैसा जमा कर रखी हैं, शोहर को बता दीजिएगा कि हमने जमा कर रखा है, ले लीजिए। अगर नहीं है कोई बात नहीं। बहुत से मेरी बहनें देख रहे कहाँ हमारे पास कहाँ है, डॉक्टर साहब क्या बोल रहे, कहाँ से लेकर आए, ऐसा नहीं, जिनके पास है। क्योंकि बहुत से ऐसे औरतें डर रहे बताने के लिए, क्योंकि इतना पैसा कहाँ से लग रखा, इतना मैं पहले पूछा आपने नहीं दिया, अभी कहाँ से आ गया, रहता है ना घरों में। तो ये हिसाब से तो उस पैसे को बैंक में डाल सकते हैं, खर्चे को मतलब आज जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं। फिर से एक गुजारिश है, छोटे लोगों के पास लेन देन कीजिएगा। सब्जी वगैरह जो है फुटपाथ में जो लोग हैं उनसे खरीदिए, इंशाल्लाह ताला वो भी ज़िंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा तो ज़िंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब ने बहनों के लिए मशवरा दिया, भाइयों के लिए ये मशवरा है कि अगर घर में कुछ पैसे पाए जाएं तो गनीमत जानिए और बीवी को शाबाशी दीजिएगा और वो पैसा अपने काम में लाइए, समाज के काम में लाइए। झगड़े पंचायत के लिए ज़िंदगी पड़ी है, अभी फ़िलहाल जो मजबूरी है उसको दूर करते हैं। आइए नाज़रीन, अपने पहले कॉलर को शामिल करते हैं। कर्नाटक से सलीका कानूम साहिबा हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी सलीका साहिबा, बताएं क्या सवाल है आपका? आपका मेरे लड़के के बारे में बात करनी है। हाँ बताइए, वो लड़के का नाम बताइए, इनकी पैदाइश बताइए। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जी। 24 नवंबर 2001। 24 नवंबर 2001 जी। और कुछ? ठीक है, वक्त बताइए, टाइम बता दीजिए। तालीम के वास्ते में बात करनी है। इनका टाइम बताइए, पैदाइश का वक्त बताइए। वो पैदाइश का टाइम तो पता नहीं है। सुबह, दोपहर, शाम, रात? रात में। ठीक है, बात कीजिएगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर अस्सलाम साहब वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहन आपका नाम क्या है? सालिका खानम। सालिका खानम, कहाँ से बोल रहे हैं आप? रामनगरम। रामनगरम से बोल रहे हैं, माशाल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, सबकी रहनुमाई हो रही है। शुक्रिया बहन। अभी हम जो बताए पैसों के बारे में, कुछ जमा के रखी है पैसा? नहीं। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, क्योंकि जो लोग जमा कर रखे हैं बोल देना अच्छी बात है। क्योंकि बाद में हमारे पीएम साहब ने कहा ना, 12 बजे के बाद ये 500 का जो पैसा है पेपर रहेगा, पेपर। तो दिसंबर में पेपर ही हो जाएगा वो। जी जी। तो अपने बेटे के बारे में जानना है, नवाज शरीफ के बारे में। पैदा हुआ हफ्ते के दिन मालूम है आपको? जी नहीं। उस दिन हफ्ते का दिन था। बच्चा थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा कमजोर रहेगा, याददाश्त कम रहेगी, हाफिजा कहते हैं ना, क्योंकि पढ़ाई का जो ताल्लुक होता है हाफिजे से। जिसका हाफिजा कमजोर हो जाता है पढ़ाई में कमजोर हो जाता है। हाफिजे को स्ट्रांग होना है, मतलब मेमोरी पावर, क्योंकि जो पढ़ाई पढ़ते हैं उसको याद रखना है।
तो बच्चे में थोड़ा हाफिजा कम है, थोड़ा परेशान रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, हर चीज़ के लिए 4 से 5 बार बोलना पड़ेगा आपको, थोड़ा सुस्त मिजाज रहेगा, क्योंकि सैटर्न कमज़ोर है, जिसमें क्या होता है पानी भी लेकर पीने वाला नहीं है। जब पानी मांगेगा, जब तक तुम पानी नहीं देंगे वो पिएगा नहीं। अगर आप कहेंगे लेकर पी ले तो ऐसे ही सो जाएगा, पानी पिएगा भी नहीं, मतलब इतना लेजीपन रहेगा, थोड़ा सुस्त रहेगा बच्चा, उम्र भी छोटी है, लेकिन डेवलप कीजिएगा इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ सकते हैं। मर्क्यूरी कमज़ोर में क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्लानिंग कम हो जाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्लानिंग का मतलब होता है, जैसे देखिए मैं समझा देता हूँ मिसाल से, जैसे हम सुबह में खाना खाते हैं, रोटी खाई तो दिमाग में आता है दोपहर में हम बिरयानी खाना है या सादा खाना खाना है, चावल खाना है, जो भी खाना है अपने को, शाम में क्या बनवाना है, एक प्लानिंग होती है। एक खाने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्लानिंग। आगे क्या करना है, आजकल सुबह उठकर हम कहाँ जाना है, ऑफिस पे जाना है, क्या काम है मेरा, मैं क्या करना है। जब तक इंसान के अंदर ये प्लानिंग नहीं होगी, जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो अभी तक ये बच्चे के अंदर इंटेलेक्चुअल प्लानिंग नहीं, जिसमें क्या होता है परेशानियां बढ़ने के इम्कान ज्यादा है। इसको खत्म करने के लिए आपको चाहिए, आपके बेटे के लिए एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक नीलम ब्लू सफेर कहते हैं 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहने, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, हाफिजा में तंदुरुस्ती आएगी, हाफिजा बढ़ेगा तो पढ़ाई में आगे बढ़ेगा, खुशहाल रहेंगे। एक मशवरा है आपके बेटे के लिए, पढ़ाई की दुनिया में अगर लेकर जाना है तो मैनेजमेंट की फील्ड में लेकर जाइएगा, मतलब BBA, BBM, BCA जो भी होते हैं, कॉमर्स वगैरह ऐसे लिए चीज़ें लेकर फ्यूचर में MBA कराइए, इंशाल्लाह ताला एक अच्छा मैनेजमेंट ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है, ज़िंदगी में खुशहाल रह सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं कौन लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लाइन डिस्टर्ब है, डॉक्टर साहब से और मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। अब जो आगे हालात का कोई प्रेडिक्शन हो, कोई हालात किस रुख पर जाएंगे, क्या हो सकता है, मुमकिनात क्या है, क्या अंदेशे हैं, लोग हज़ार बातें कर रहे हैं, जहन क्लियर हो जाए लोगों का। अगर आप देखिए, हमने अभी बताया दिसंबर 15 तारीख तक कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन, लिटिगेशन, पुलिस केसेस, एहतजाज, परेशानियाँ, मुश्किलात, हर चीज़ होने वाली हैं। दोनों तरफ से परेशानियाँ, गवर्नमेंट के लिए भी परेशानी है, लोगों के लिए भी परेशानी है, क्योंकि सैटर्न और सन मिले हुए हैं तो मुश्किलात बढ़ेंगी, परेशानियाँ बढ़ेंगी, थोड़ा परेशानी का मंजर ही रहेगा, क्योंकि हमें बता रहे हैं इतने परेशानी में लोग फंसे हुए हैं। आसान से बोल देते हैं कि वहाँ पे परेशानी, वहाँ पर जो लोग वहाँ पे परेशानी, अभी तो हम जब यहाँ पे आने से एक आधा घंटे पहले एक व्हाट्सएप में एक पिक्चर भी आई, फ़ोटो भी आई कि कुछ दिल्ली में कुछ लोगों ने कपड़े निकाल दिए कि इतना उनको स्ट्रेस हो गया था, इतना दबाव हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था, ये सभी बहरहाल चल रहा है। मैं बयान नहीं कर सकता चीज़ों को, आप लोग टीवी के ज़रिए देख रहे हैं तो आप देख लीजिएगा। तो मुश्किलात बढ़ जा रहे हैं, परेशानियाँ बढ़ जा रही हैं, तो टेंशन बढ़ जा रहे हैं, पुलिस केसेस हो रहे हैं, लोगों की अमवात हो रही हैं, डिस्टर्ब हैं। अभी हम बता रहे थे ना, छोटे लोगों को अगर आप साथ देंगे इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हम बताया ना, जब कुंटे का पानी जब खाली हो जाता है, तालाब का पानी, छोटी छोटी मछलियाँ पहले मर जाती हैं। जो क्रोकोडाइल जो होता है, मगरमच्छ जो होती है, मट्टी पर भी बसेरा कर सकती है। तो इसकी मिसाल है, क्रोकोडाइल की मिसाल दे रहा हूँ मैं। ब्लैक मनी वाले क्या करते हैं, पर उनका ज़िंदगी कैसे भी गुजारा हो जाता है। आजकल चल रहा है, परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, पता नहीं, हर चीज़ में हम देख रहे हैं, सुबह से न्यूज़ में देख रहे हैं, ये सब चल रहा है बहरहाल। तो 1 महीना जो है मुश्किलात का रहेगा, लेकिन ये सारा मामला सेटल होने के लिए 2017 मार्च तक ये परेशानी इंशाल्लाह ताला रहेंगी। हम दुआ करते हैं कि मुश्किलात ना ज़िंदगी में खुशहाल रहें। बहरहाल बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर पर से बात करते हैं, देखते हैं कौन लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, कौन, कहाँ से? जी अजीज़ खान, मुंबई से। अजीज़ खान, बताएं अजीज़ खान, क्या सवाल करना चाहते हैं आप, क्या जी पूछना मुझे चाहते मेरी बहन के बारे में पूछ रहा है। जी, बहन का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताएं, वालिदा का नाम बहन बताएं। का नाम है समरीन खान जी, और डेट ऑफ बर्थ है 19 अक्टूबर 1994 जी, और पैदाइश का वक्त रात के 11:30 बजे, बुध का दिन था। ठीक है भाई, ठीक। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ बात खान कीजिए। साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं बताइए? बस अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शुक्रिया, आप बहुत रहनुमाई हो रही है। बस हम लोग आपके, बस एक बार ऐसा आपके हैदराबाद आके आपसे मुलाकात करें, ऐसा लग रहा है बस। इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह आप मिल सकते हैं, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे विशाखापट्टनम में हो, चाहे विजयवाड़ा में हो, चाहे बेंगलोर में हो। जी चाहे नहीं, हम दुबई में बॉम्बे से हैदराबाद ही नजदीक पड़ेगा हमको। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो बहन के बारे में पूछना है?
जी हाँ, बहन के बारे में एक्चुअली इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर ली है उसने, लेकिन अभी तक है, मतलब अभी हो गई तो मतलब उसके लिए रिश्ते के लिए भी है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब रिश्ते सही आ ही नहीं रहे, मतलब अभी तक के जैसे दिल भाई देने जैसा, क्योंकि है रहे कुछ आगे क्या हो रहा है, मतलब एकदम ठप पड़ा है, मतलब उस हिसाब से, क्योंकि अभी पढ़ाई हो क्या हो चुका है, सेमेस्टर सब क्लियर हो चुके हैं, मतलब अभी घर पर ही है वे तो। देखिए मेरे भाई, एक्चुअली आपने आपकी बहन का जो दिया है डेट ऑफ बर्थ से देखा तो बुध का दिन था, जन्म हुआ उनका, और पढ़ाई के हिसाब से देखा जाए तो इंजीनियरिंग ने किया है माशाल्लाह, आला तालीम भी दिखा रही है। अगर हो सके तो आला तालीम के लिए आप ट्राई कीजिएगा, भेजिएगा। और रही शादी की बात, थोड़ा क्योंकि आप सबसे पहले बता दूं, आपकी बहन का नेचर थोड़ा सेंसिटिव है, सेल्फ अर्निंग है, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन थोड़ा सेंसिटिव है। छोटे छोटे बातों में थोड़ा परेशानियां हो जाती हैं, थोड़ा नरस हो जाती हैं, थोड़ा डर जाती हैं, थोड़ा मिजाज जो है बहुत कमज़ोर मिजाज है, थोड़ा ज़ोर से चिल्लाएंगे तो भी थोड़ा डर लग जाता है, ऐसा थोड़ा मिजाज है उनका। हाउस ऑफ कोऑपरेशन अगर देखा जाए तो थोड़ा शादी में मुश्किलात आएंगी। हमारा तो सजेशन है, अगर आला तालीम अगर हो सकती है तो उसमें भेजिए, इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जुपिटर स्ट्रांग है इनका, जिसमें क्या होता है आला तालीम में जाने की इम्कानात ज़्यादा दिखा रही हैं। ये नंबर 2, जो शादी का जो आपने सवाल किया है, थोड़ा मुश्किलात हर्डल्स दिखा रहे हैं, क्योंकि सैटर्न जो है गर्दिश में है, जो मेन की ऑफ सक्सेस कहते हैं, क्योंकि 9th हाउस बिलोंग्स टू द किंग मेकर, और की ऑफ सक्सेस कहते हैं जहां पर गर्दिश में, जिसमें क्या होता है रुकावटें, डिले होना, कुछ रिश्ते आपको पसंद नहीं आते, कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आते, ये उसमें ताख़ीर हो जाती है, मुश्किलात बढ़ जाते हैं। मर्क्यूरी भी कमज़ोर, सैटर्न भी कमज़ोर, जिसमें थोड़ा परेशानी डिस्टर्बेंस बढ़ने की इम्कान ज़्यादा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपके बहन को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं, ज़मरुद भी कहते हैं, 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक नीलम ब्लू सफ़ायर कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, दोनों बनाकर पहने इंशाल्लाह ताला, एक गर्दिश ख़त्म हो जाएगी। गर्दिश में क्या होता है, ताख़ीर होती है, इंसान कंक्लूजन्स में नहीं मिलता, थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाता है, टेंशन में रहता है। उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए एमराल्ड अच्छा काम करेगा, और जो रुकावटें आ रही हैं, जो परेशानियाँ आ रही हैं, उसको ख़त्म करने के सैटर्न अच्छा सा काम करें इंशाल्लाह ताला। ये दोनों बनाकर पहनाइएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा, और जवाहरात के किंग आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर एम रज़ा साहब। आप डॉक्टर एम रज़ा साहब से पर्सनल मुलाकात के लिए फ़ोन पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप हर जुमेरात, हर चारशंबा विशाखापट्टनम में आप मुलाकात कर सकते हैं, और हर जुमेरात विजयवाड़ा में मुलाकात कर सकते हैं। खुसूसी तौर पर इस महीने 25 और 26 नवंबर को डॉक्टर एम रज़ा साहब दुबई में रहेंगे। दुबई के मिडिल ईस्ट के तमाम हजरात अगर आप चाहते हैं तो प्रियर अपॉइंटमेंट के तहत डॉक्टर एम रज़ा साहब से दुबई में मुलाकात कर सकते हैं। और बेंगलुरु में एम रज़ा साहब के भाई साहब डॉक्टर रोशन साहब मौजूद हैं, आप इनसे भी अपॉइंटमेंट के साथ मुलाकात कर सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हैं। आइए देखते हैं कोई कॉलर लाइन पर मौजूद हो तो शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम सलाम। हजरत डॉक्टर साहब जी, अल्लाह का एहसान है मोहतरम। कौन, कहाँ से? मैं मोहम्मद गौस मोहद्दीन बोल रहा हूँ विजयवाड़ा से। जी गौस साहब विजयवाड़ा से बोल रहे हैं। आपसे मिलके। जी जी डॉक्टर साहब। हमारे वालिदा के नाम में माहे जबीन है। माहे जबी हैं जी, वालदा जी। हाँ, वालिदा माहे जबीन है, और उनके माँ का नाम है मरहूम हाफिजा बेगम जी। जी डॉक्टर साहब से आप पर्सनली मुलाकात भी कर सकते हैं। जुमेरात को विजयवाड़ा में डॉक्टर साहब मिलेंगे इंशाल्लाह। पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिए। डॉक्टर साहब से बात कीजिएगा, मुखातिब हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद गौस मोहिद्दीन साहब। वालेकुम सलाम, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप कैसे हैं? हाँ, खैरियत है। कहाँ रहते हैं? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में रहते हैं? हाँ। तो विजयवाड़ा में हमारा शोरूम है, इंशाल्लाह ताला हम एवरी थर्सडे अवेलेबल रहते हैं। हाँ, मिला था मैं आपको 2-3 दिन पहले। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो माँ का नाम है महाजबीन, माहे जबीन, और उनके माँ का नाम मरहूम हाफिजा बेगम था। मरहुमा हाफिजा बेगम। थोड़ा हेल्थ की प्रॉब्लम है जी, सेहत खराब है, हाँ। थोड़ा डिस्टर्ब हैं, घबराहट ज्यादा होती है, बेचैन रहती हैं, हैबत खा जाती हैं, थोड़ा डर लगता है, ज्यादा बुरे सपनों की दुनिया में रहती हैं, परेशान है, डिस्टर्ब हैं। हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए, हड्डियों का प्रॉब्लम भी है, कमर का दर्द भी है, घुटनों का दर्द भी है, ये परेशानी है, सुकून खो चुकी हैं, माइंड सही से काम नहीं करता, कन्फ्यूजन ज़्यादा, घर में हालत सही नहीं है, सारे बच्चे भी परेशान हैं। आप आए थे, हमें याद है लास्ट थर्सडे आप मिले थे, बहुत परेशान, डिस्टर्ब, आपकी शादी भी नहीं है अभी तक। ये सारे मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं। बहरहाल इससे बाहर निकलने के लिए आपकी मम्मी को चाहिए, आपकी माँ को चाहिए, एक याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक सच्चा मोती 3 कैरेट का,
दोनों बनाकर पहनाइए, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, सुकून मिलेगा। सबसे बड़ी जो नेमत मिलेगी आपकी वालिदा को ये जवाहरात पहनने के बाद, सुकून। सुकून आपको मार्केट में मिलने वाली चीज़ नहीं है, बाज़ार में मिलने वाली चीज़ नहीं है, वो चीज़ आपको मिलेगी इस जवाहरात में। बहरहाल ये मोती के पहनने से क्या होता है, सुकून मिल जाता है, खुशी मिलती है, इंसान एक पीस महसूस करता है, सुकून महसूस करता है। बहरहाल आपकी माँ खुश रहेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बेस्ट शुक्रिया आप सब। और एक कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी सर मैं इरशाद अली गोपालगंज से बोल रहा हूँ। जी मुझे इरशाद अपने मामा जी के बारे में देखना था। बताइए। मामा जी का नाम नाम बताइए। मामा जी का नाम बताइए। नबी हसन जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 19/11/1979। 1900 क्या कह रहे हैं? 19/11/1979। अच्छा अच्छा जी, ठीक है ठीक है। 87 जी तो 1979। 79 जी 19/11/1979। वक्त क्या है? किस वक्त पैदा हुए हैं? जी सर शाम में 4 बजे के आसपास। 4 बजे शाम, ठीक है। बेस्ट शुक्रिया। आप डॉक्टर साहब से बात अस्सलामुअलैकुम करिएगा। साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। पूरे हिंदुस्तानियों की रहनुमाई हो रही है, माशाअल्लाह आपकी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अब मैं इससे पहले अपने अम्मी के लिए पता किया था डॉक्टर साहब, माशाअल्लाह, तो अल्लाह सलामत काफी रखे। अच्छी है, सेहतमंद है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, हमेशा सेहत से रखे। आपकी माँ को हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। और आपने आपके मामा जी का, मामा जी मतलब मामू है ना, मम्मी के मतलब मामू, हाँ मामू है सर। थोड़ा काफी बिजनेस से परेशान था, इनके बारे में बताइए। इंशाल्लाह हम ज़रूर बताएंगे। आपके मामू का जन्म हुआ है उस दिन अमावास का दिन था। आप पूछ लीजिए आपके अम्मी को, या जब नानी है तो पूछ लीजिएगा। उस दिन 29 तारीख थी उर्दू की, अमावास का दिन था। थोड़ा गुस्से का मिजाज है, जल्दबाज हैं, शार्ट टेम्पर हैं, ख़ुद को हीरो मानते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं, हर चीज़ आसान लगता है, कर नहीं पाते, परेशान हो जाते, डिस्टर्ब होता है। दूसरों को आइडिया दे सकते हैं लेकिन खुद आगे नहीं बढ़ पाते, परेशानी डिस्टर्ब है। सन कमज़ोर है जिसकी वजह से थोड़ा हेल्थ भी डिस्टर्ब रहेगा, स्पेशली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आएगा, डाइजेशन का प्रॉब्लम आएगा, खाने पीने में ध्यान नहीं रहेगा, गुस्सा कभी भी हर टाइम तालू पे रहेगा, ज़्यादा रिएक्ट हो जाते हैं, थोड़ा जज्बाती इंसान है, इमोशनल पर्सनालिटी कहते हैं। साथ के उसके हिसाब से देखा जाए तो 7th हाउस इज डैमेज, हाउस ऑफ कोऑपरेशन, पार्टनरशिप, मतलब मैरिड लाइफ भी ठीक नहीं है, डिस्टर्ब हैं, थोड़ा परेशानियां ज़्यादा हैं, बढ़ रही हैं आगे, उसको ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करने के लिए आपके मामू को चाहिए एक याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक येलो सफ़र पीला पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, दोनों बनाकर पहनाइएगा। सबसे पहले उनको सेहत अच्छी रहेगी, दिमाग शांत हो जाएगा। दिमाग शांत का मतलब होता है प्रॉपर वे में दिमाग यूज़ होगा। देखिए दिमाग को भी प्रॉपर वे में इस्तेमाल करना है, ऐसे न वक्त के हिसाब से बात करना है, वक्त के हिसाब से काम करना है, ऐसी चीज़ करेगा जुपिटर। साथ में शादी के लिए भी खुशी देगा, कामयाब बनाएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब। कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब कौन, कहाँ से? जी मैं अब्दुल हफीज बोल रहा हूँ, न्यू पुलिस सिकंदराबाद हैदराबाद, जी हफीज तेलंगाना। साहब बताइए क्या पूछना चाहते हैं, किसके बारे में पूछना चाहते हैं? जी मेरे को अपने बारे में पूछना था। जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। ये सर वो तो ठीक से याद नहीं है सर। वालदा का नाम बताइए। जी वालदा का नाम फातिमा बेगम है। फातिमा बेगम है। वक्त मालूम है कब पैदा हुए हैं? तो सर अब ठीक से याद नहीं है, सिर्फ वालदा बोलते हैं कि शाम के टाइम पैदा हुए थे, उनके बोले ठीक है साहब, ठीक है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हफीज साहब। वालेकुम सलाम साहब। आपके तो प्रोग्राम देखे तो हम लोग तो सब लोग बहुत इम्प्रेस हो गए, बहुत बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है आपका प्रोग्राम। शुक्रिया जनाब। जनाब आपको लोग क्या पुकारते हैं? अब्दुल हफीज पुकारते, हफीज पुकारते हैं? मेरे को ज्यादातर हफीज नाम से ही पुकारते सब लोग। हाँ, अब्दुल हफीज नहीं बोलते, हफीज ही बोलते हैं। हफीज पुकारते हैं। वालिदा का नाम है फातिमा बेगम। जी हाँ। बहुत डिस्टर्ब हो मेरे भाई, परेशान हो जिंदगी में? जी हम तो वो जाएंगे, जॉब कर रहा हूँ, जाएंगे कुछ भी घर में हर जगह बदनामी मिल रही, कहीं भी नाम नहीं हो रहा कोई। समझिए, सुनिए, आराम सुनिएगा। जॉब में सेटलमेंट नहीं है, लाइफ में थोड़ा लिटिगेशन ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेशन है, बेइज्जत होना, परेशान होना, गलती ना भी करो तो तोहमत लग जाती है ऊपर, डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेहनत आप करते हैं, उसका क्रेडिट जाता है किसी और को, साथी को जाता है, थोड़ा डिस्टर्ब हैं। जॉब में अभी तक सेटलमेंट नहीं मिला है आपको, जिम्मेदारी ज़्यादा है, करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं,
फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, जीरो की ज़िंदगी में उल्टा खर्जा भी हो जाता है, घर के हालात सही नहीं हैं, कभी सोचते हैं बाहर चले जाऊं, कभी सोचते हैं इधर ही काम करूं। तो आपके लिए इधर ही काम करना अच्छा है, बाहर जाने से भी उतना डेवलपमेंट नहीं है। सबसे पहले आपकी गर्दिश को ख़त्म करने के लिए, परेशानी को दूर करने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक सफ़ेद पुखराज वाइट सफ़ेर कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, उसके ऊपर जा सकते हैं आप, मिनिमम 3-3 कैरेट का दोनों बनाकर पहनिएगा इंशाल्लाह ताला। जिसके पहनने से क्या होता है, सबसे पहले आपको एक स्टेबल जॉब मिलेगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, फाइनेंशियली जो क्राइसिस है आपकी ज़िंदगी में, जो मुश्किलात हैं, ऐसे तो पूरे इंडिया में आज क्राइसिस चल रहा है, लेकिन आपके जायजे में पहले से भी है, अभी भी चल रहा, आगे भी जाएगा, इसको ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए ये दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, हम आपको बता दें, डॉक्टर साहब से आप शख्सी मुलाकात कर सकते हैं। टेलीफोन पर पहले प्रायर अपॉइंटमेंट लें, हमारे स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं इनके नंबरात, इन नंबर पर आप जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हर चारशंबा यानी वेडनेसडे विशाखापट्टनम में डॉक्टर साहब अवेलेबल रहेंगे, और हर जुमेरात को यानी थर्सडे विजयवाड़ा में अवेलेबल रहेंगे। खुसूसी तौर पर इस महीने की 25 और 26 को डॉक्टर साहब दुबई में अवेलेबल रहेंगे, आप इनसे खुसूसी मुलाकात कर सकते हैं। और बेंगलुरु में रहने वाले, बेंगलुरु में डॉक्टर रोशन साहब जो डॉक्टर साहब के भाई साहब हैं, इनसे भी मुलाकात कर सकते हैं और अपने मामलात को इस्तवार कर सकते हैं। आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन जवाहरात का करिश्मा। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर MM रज़ा, किंग ऑफ जेम्स। बात करते हैं, देखते हैं कोई कॉलर लाइन पर मौजूद हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम खैरियत। हजरत बताएं कौन कहाँ से? जी मैं करनूल से बात करूँ, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। अब्दुर्रहमान साहब करनूल से, जी जनाब। जी मुझे अपने चाचा के बारे में मालूम करना था डॉक्टर साहब से। उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी उनका नाम है अमजद अली खान जी, और उनका डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 1963। जी ठीक है साहब, बात कीजिएगा डॉक्टर साहब से और टाइम वगैरह बताएं, कब पैदा हुए, क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं, अल्लाह का फजल है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम हम बहुत बड़ी शौक के साथ हर हफ्ते के दिन देखते हैं, सब मिलजुल कर पूरे घर वाले, और दिल से दुआएं भी निकलती हैं आपके हक में। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने एक बहुत अच्छे काम को शुरू किया है। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। जी तो आपको अपने चाचा के बारे में जानना है? बारे में मालूम करना था जी। अमजद अली खान नाम है उनका। जी जी जी। जून 1 तारीख 1963। टाइमिंग मालूम है? टाइमिंग नहीं मालूम है सर। ओके ओके अब्दुर्रहमान साहब, आपने आपके चाचा के बारे में जो डेटा बर्थ दिया है उस हिसाब से अगर देखा जाए, मर्क्यूरी कमज़ोर, साथ में वीनस कमज़ोर, ज़िंदगी में बहुत मेहनत की लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए, हर काम में रुकावटें देखी, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पाए, काम नज़दीक तक आना पेंडिंग, तरक्की रुकी हुई है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, प्लानिंग पूरे फेल हो जाते हैं, नागहानी परेशानियाँ गले पड़ जाती हैं, घर में हालत सही नहीं है। 2011 के बाद मिजाज ख़राब है, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम, रगों की कमज़ोरी आएगी, मुश्किलात आएंगे, थोड़ा वीकनेस बढ़ जाएगा। 2011 के बाद सेहत बहुत ख़राब चल रही है इनकी, प्रेशर ज़्यादा है, टेंशन है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, बचपन से मुश्किलात की ज़िंदगी देखकर सामने आए हैं, लेकिन आज भी वही मुश्किलात में फंसे हुए हैं, सुकून का नामो निशान नहीं है जायचे में। फ्रॉम द बिगिनिंग पावर्टी, गरीबी देखी, परेशानी देखी, मुश्किलात को देखकर ज़िंदगी का सामना किया, लेकिन थोड़ा ज़िंदगी ने साथ दिया 2001 से 2011 तक, लेकिन 2011 के बाद डाउनफॉल शुरू हो गया फाइनेंशियली अकॉर्डिंग अलॉन्ग विथ हेल्थ प्रॉब्लम। ये दोनों मुश्किलात चल रही हैं, एक तरफ से हेल्थ की, सेहत की प्रॉब्लम, एक तरफ से पैसों की प्रॉब्लम है, मुश्किलात में है ज़िंदगी में। इसको ख़त्म करने के लिए, ज़िंदगी में खुश रहने के लिए आपके चाचा को चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं, जमरुद भी कहते हैं, 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक सफ़ेद पुकराज वाइट सफ़ेर कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, दोनों बनाकर पहनाइएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी। सबसे पहले जो उनको फ़ायदा होगा वो है सेहत, क्योंकि 5 साल से सेहत की कमज़ोरी, परेशानियां दिखा रही हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। साथ में फाइनेंशियली ग्रोथ मिलेगा, ज़िंदगी में सुकून मिलेगा। अभी मैं कह रहा था सुकून सबसे बड़ी जो चीज़ मिलने वाली है जवाहरात में, सुकून मिलेगा, मंजिल मिलेगी, रास्ते खुल जाएंगे, नए नए लोगों से पहचान होगी, आप सोच भी नहीं सकते। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में आएंगे, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर बता दूँ नाजरीन के लिए, बहुत से लोग सोचते हैं जवाहरात पहनने से क्या होता है। बहरहाल हम 2 साल से प्रोग्राम देते आ रहे हैं, हर दिन हम बताते रहते हैं कि कुरान और सुन्नत के ज़रिए हम कैसे बता रहे हैं, क्योंकि हम जो बताते हैं पूरे एक सर्कल के अंदर रहता है, सुन्नत और कुरान के
सर्कल के अंदर ही बताते हैं हम लोगों को, परेशानियां दूर करने के लिए, मुश्किलात दूर करने के लिए, क्योंकि हमारे पास तारीख मौजूद है। जवाहरात को नेमतुल्लाह कहा जाता है। इससे क्या होता है, जब सितारे गर्दिश में आ जाते हैं, इंसान परेशानी में फंस जाता है, मंजिल को खो जाता है, दिमाग सही से काम नहीं करता, क्या काम करो समझ में नहीं आता। इस समय में उसको साथ देंगे ये जवाहरात। जैसे जवाहरात पहनेंगे, जवाहरात के पहनने से क्या होता है, सितारों की गर्दिश रुक जाती है, थम जाती है। जब क्या होता है, इंसान की सोच बढ़ जाती है, नए नए रास्ते फराहम हो जाते हैं, खुल जाते हैं, नए नए लोगों से दोस्ती मिल जाती है, सेहत अच्छी रहती है। हम जो बता रहे हैं, हर मुश्किल का हल जवाहरात में है। परेशानी जो भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, फाइनेंशियली अगर पैसों का प्रॉब्लम है, फैमिली का प्रॉब्लम है, शादी में प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों का प्रॉब्लम है, पढ़ाई में प्रॉब्लम चल रहा है, बाहर जाना है, वीज़ा नहीं मिल रहा है, बाहर जाकर ऑलरेडी रुके हुए हैं लेकिन सैलरीज नहीं बढ़ रहे हैं, मुश्किलात में फंसे हुए हैं, पैसों की प्रॉब्लम चल रही, तंगी चल रही है, घर बनाना है, घर नहीं बना पा रहे हैं। बहुत से इतने लोग हैं पैसा रखने के बावजूद घर नहीं बना पाते, घर कब बनने वाला है, कैसे बनने वाला है। हर चीज़ को, जो ज़िंदगी को जो ब्लैंक्स होता है इंसान की सोच से लेकर, सबसे पहले क्या होता है, इंसान की सोच होती है, इंसान का नेचर मिजाज होता है। कोई थोड़ा कड़क मिजाज का होता है, कोई तेज़ मिजाज का होता है, कोई ठंडे मिजाज का होता है, कोई मीठे मिजाज का होता है। बहरहाल इंसान की मिजाज से लेकर इंसान के खर्च तक, ज़िंदगी में जो गुम जाता है, परेशानियाँ, मुश्किलात, हर चीज़ को पहचाना जा सकता है। उसको ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला की नेमतों को इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते कि एक बार आप अपना चेक करवाना है कि परेशानियाँ क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों हैं, परेशानी क्यों है। उसको ख़त्म करने के लिए जेम्स, मेडिसिन ऑफ गॉड कहते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से एक दवा के तौर पर अब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे अल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए अगले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन कहाँ से? मैं मीर काजिम अली बात कर रहा हूँ। जी काजिम अली साहब, बताइए क्या सवाल है आपका और किसके बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? मैं अपने बारे में खुद बात करना चाहता था। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 22 जुलाई 1966। 66 जी। अपना टाइम बता सकते हैं आप? वक्त तो मालूम नहीं है। खैर, डॉक्टर साहब से बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मीर काजिम अली साहब। वालेकुम सलाम जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी हो रही है कि आपको अल्लाह ने परेशान हाल लोगों के लिए नजात का जरिया बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया। आप कहाँ से बोल रहे हैं भाईजान? मैं रायचूर से, कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह, रायचूर से बोल रहे हैं आप जी। आपको अपने बारे में जानना है? जी मेरे बारे में। देखिए मीर कासिम अली साहब ने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, इसके हिसाब से देखा जाए तो आपके अंदर हेल्पिंग नेचर है, दूसरों की ज़्यादा मदद करते हैं आप, अपने ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, हार्ड वर्कर हैं, लेकिन उतना फल नहीं मिलता आपको। कंफ्यूज हैं, सही फैसला नहीं ले सकते। समय के ऊपर अगर आपको फैसला लेना है तो मुश्किल में पड़ जाते हैं, उलझने बहुत हैं आपके अंदर, फैसला नहीं ले सकते आप। हर काम में रुकावट है, तरक्की नहीं है, डेवलपमेंट रुका हुआ है। मेहनत मतलब एक कदम आगे बढ़ाते हैं, 5 कदम पीछे हो जाते हैं। एक तरफ से उलझन में पड़े हुए हैं, टेंशन में डिस्टर्ब हैं, सही फैसला नहीं ले सकते हैं। एक तरफ से कारोबार में तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर है, परेशान है, फैमिली में भी हालात सही नहीं चल रहे हैं, जिम्मेदारी बहुत करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, डिस्टर्ब है। हाउस ऑफ प्लानिंग भी डैमेज है। हाउस ऑफ प्लानिंग का मतलब होता है आप जो सोचते हैं उल्टा चलता है। आप सोचते हैं कि लेफ्ट में जाऊं, बाएं जाऊं, ज़िंदगी तमाम जा रही है दाएं तरफ, मतलब राइट में जा रही है। ज़िंदगी परेशान है, डिस्टर्ब है, बहुत मुश्किल में फंसे हुए हो, क्योंकि आपके जायचे में सन मून दोनों कमज़ोर, और सन भी थोड़ा कमज़ोर होने से क्या होता है, हेल्थ की भी प्रॉब्लम्स लेकर आता है, थोड़ा ब्लड क्लॉट्स लेकर आता है, परेशानियाँ, डिस्टर्ब, इन्फेक्शंस करता है, एलर्जी प्रॉब्लम करता है। ये सारे मुश्किलात चल रहे ज़िंदगी में। इसको ख़त्म करने के लिए, ज़िंदगी में उलझनों को ख़त्म करने के लिए, सेहत को अच्छी बनाने के लिए, सुकून से जीने के लिए, कारोबार में तरक्की पाने के लिए आपको चाहिए कि याकूत, रूबी कहते हैं, 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक मोती, सच्चा मोती पहनिएगा, 3 कैरेट का रहना है, दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आइए अपने व्यूवर से बात करते हैं, देखते हैं कितने लोगों ने इस प्रोग्राम से इस्तेफादा किया है और इनका क्या कहना है, और सेलिब्रिटीज़ को भी जानते हैं। देखें, मुशाहिदा करते हैं। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी,
حسن و رنگ کے امتزاج سے بھرا کائنات کا ہر ذرہ اپنے اندر قدرت کے عطا کردہ کمالات سے بھرپور ہے. کسی ذرے کو حقیر نہ سمجھیں. اس فلسفے کو جاننے والے تو بہت سے ہیں، لیکن سمجھنے والا ذہن اور پرکھنے والی آنکھ ہو تو بات بنتی ہے جناب. اور ایسی شخصیتیں برسوں میں پیدا ہوتی ہیں. مبارک ہو آپ کو کہ آج کے دور میں ایسی ہستیاں ہمارے بیچ موجود ہیں. نام ہیں ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب، راسک جیمز اینڈ جویلرز کے کرتا دھرتا. ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ایسی نظر عطا کی ہے کہ جہاں کہیں جب کبھی جیمز کی بات ہوتی ہے تو ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب کی مہارت کی بات ضرور ہوتی ہے. یہ دونوں ماہر جیمولوجسٹ ہیں جو کئی سالوں سے اپنی خدمات سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. جیسے ایک ماہر ڈاکٹر مرض کی پیچیدگیوں کے ساتھ ساتھ دواؤں کی خصوصیات سے بھی واقف ہوتا ہے، ویسے ہی ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب جیمز کے مزاج کو بخوبی پہچانتے ہیں اور اللہ نے انہیں وہ علم عطا کیا ہے. یہ جانتے ہیں کہ کون سا جیم کس شخص کے لیے مناسب ہے اور اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے. اس راز کی حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ یہ زمین اپنے اندر مٹی اور پتھروں کے ذخیرے کو محفوظ رکھتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ کوئی نظرداں آئے اور اس کی گوشت سے پتھروں کے بیچ سے گوہر نایاب کو چن لے اور اللہ کے بندوں کو اس کے استعمال سے فائدہ پہنچائے. ڈاکٹر ایم رضا نے یہ کام انجام دیا ہے اور اپنی ماہرانہ خدمات کے سلسلے میں کئی ایوارڈز بھی حاصل کیے ہیں. ڈاکٹر ایم رضا نے ہسٹری، لاجک، سائنس اور ریلیجین کے حوالے سے جیمز کے متعلق انگریزی زبان میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دا پاور آف جیمز. ڈاکٹر صاحب نے صدر جمہوریہ ہند شری پرنب مکھرجی سے ملاقات کر کے انہیں اپنی کتاب پیش کی. اب آپ سب کی دلچسپی کے لیے آئیے آپ کو کچھ خاص باتیں بتائیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب عوام کو گوہر اور پتھر میں کوئی فرق معلوم نہیں تھا. تو سب سے پہلے میر سکندر علی نے ان گوہروں کو پہچانا اور ان کی خصوصیات سے لوگوں کو واقف کروایا. میر سکندر علی کے بڑے بیٹے میر علی بابا نے ضلع اننت پور مدکسیرا تعلقے میں 140 ایکڑ مائنز لے کر اس زمین سے پتھروں کو نکالا. ان پتھروں میں قیمتی گوہروں کی شناخت کی اور ان گوہروں کو اس زمانے میں لندن، فرانس، سری لنکا اور جاپان کو ایکسپورٹ کیا. ان کے چھوٹے بھائی ایم حسین نے عام لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے گوہروں کا استعمال کیا اور اس کام کے لیے ایک ریٹیل شاپ قائم کی. ایم حسین کے دو لڑکے ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب نے بھی اپنے پرکھوں کی وراثت کو آگے بڑھانے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے جیمولوجی میں ڈاکٹریٹ کیا اور 1990 میں ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب نے راسک جیمز اینڈ جویلرز کے نام سے بنگلور میں ایک شو روم کا آغاز کیا. اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے جنوری 2010 کو شہر حیدرآباد میں بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 پر ایک اور برانچ کا آغاز کیا گیا اور یہ افتتاح کافی سرکردہ شخصیتوں کی موجودگی میں عمل میں آیا. ان شخصیتوں میں کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ ایچ ڈی کمارا سوامی، سابق سینٹرل منسٹر ڈی پورندیشوری اور ریاستی سابق وزیر مکیش گوڑ اور ایم وینکٹ رامن بھی موجود تھے. اور یہی نہیں، تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ محمود علی صاحب نے بھی ڈاکٹر ایم رضا کی خدمات کو بہت سراہا. بنگلور، حیدرآباد، دبئی، وجے واڑہ، تمکور اور وشاکھاپٹنم میں بھی اپنے شو روم کا آغاز کر چکے ہیں جس کا سابق وزیر اعظم دیوی گوڑا کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا ہے. جناب دیوی گوڑا صاحب نے اس موقع پر کیا کہا وہ بھی سن لیجیے. انہوں نے کہا کہ جب میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر ایم رضا کے والد ایم حسین صاحب سے متعارف ہوا تو انہوں نے مجھے ایک گوہر عطا کیا تھا جس کے فیضان سے مجھے کرناٹک اسمبلی کی رکنیت حاصل ہوئی اور میری ایم حسین صاحب سے محبت اور دوستی بڑھتی گئی.
इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कि कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। नाज़रीन, आपका फिर से एक बार खैर मक़दम है इस प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं जवाहरात का करिश्मा प्रोग्राम डॉक्टर MM रज़ा साहब के साथ में। मुख्तलिफ मालूमात हासिल की आपने, मुख्तलिफ लोगों के क्या ख्यालात है और क्या उनको फ़ायदे हुए हैं इस प्रोग्राम से और डॉक्टर साहब की रहनुमाई से, गाइडेंस से। आइए और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं, देखते हैं कौन लाइन पे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कौन कहाँ से? हम सबा बोल रहे हैं। सबा है, कहाँ से? लखनऊ से। जी सबा, बताएं क्या सवाल है आपका? जी हमें अपने बारे में पूछना था कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14 जुलाई 79 है। जी ठीक है। आपका प्रोग्राम देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जी जी। और उससे जो है हमारी परेशानियों का हल बता दीजिए कि हमारी मुश्किल, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। चलिए, आपके परेशानियां दूर हो जाएंगी। डॉक्टर साहब से बात कीजिए, अपनी पैदाइश का वक्त बता दीजिएगा। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सबा साहिबा। वालेकुम सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है सर। शुक्रिया बहन, शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। बस आप मेरी परेशानियों को दूर कर दीजिए, हम बहुत परेशान हैं, कब से बहुत परेशान हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जुलाई 14 तारीख 1979, टाइमिंग क्या है, वक्त कुछ बता सकते हैं? 14 जुलाई है 79। टाइम नहीं पता है। टाइम नहीं पता है? टाइमिंग नहीं पता है जी मेरा। जी ओके बहन, ओके मोहतरमा। देखिए आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, इस हिसाब से देखा जाए तो आप जायचे के हिसाब से सेल्फ अर्नर हैं, खुद जॉब करने वाली हैं, हेल्पिंग नेचर है, क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है, ये सारे खुसूसियात आपके अंदर हैं। स्किल्स में अगर देखा जाए तो मैनेजर स्किल्स है, टीम लीडर भी हैं, हार्ड वर्कर भी हैं, बट थोड़ा कमज़ोरी ज़्यादा है। बहुत कमज़ोर हो, वीक हो थोड़ा। मैं तो आपको देखा नहीं, टीवी में बता रहा हूँ, क्योंकि आपके जो जायचे के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कमज़ोर है, थोड़ा परेशान, डिस्टर्ब है। हाउस ऑफ प्लानिंग भी डैमेज है थोड़ा। हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो यूट्रस का प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा डिस्टर्ब है आपको। गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शंस कहा जाता है, जिससे बच्चों की तकलीफ भी होगी, परेशानी भी होगी आपको। एंड देयर इज़ नो पीसफुल मैरिड लाइफ, शादी के लाइफ में सुकून नहीं है, डिस्टर्ब है, थोड़ा परेशान है, थोड़ा बेचैन है। पहले से भी परेशानियाँ चल रही थी, लेकिन 2013 के बाद परेशानी बढ़ चुकी है, मुश्किलात बढ़ चुके हैं। जुपिटर कमज़ोर हैं, तरक्की रुकी हुई, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, शादी को लेकर भी परेशान, बच्चों को लेकर भी परेशान, डिस्टर्ब हैं, थोड़ा मुश्किल में है। साथ में सन कमज़ोर है, सेहत खराब है, मिजाज खराब है, लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, अंदरूनी हिम्मत हार जाती हैं, डिस्टर्ब में रहती हैं, परेशान रहती हैं, ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं। इससे बाहर निकलना है आपको। उससे निकलने के लिए आपको चाहिए एक येलो सफ़ेर, पुकराज कहते हैं, 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक याकूत, रूबी कहते हैं, 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, आपकी परेशानी जो है ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं कौन लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा, कौन कहाँ से है? हाँ, कोप्पल से सदिया बात कर रही हूँ। बच्चे के बारे में जानना था। बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं? बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ और पैदाइश का वक्त हाँ, बताएं। नाम शाहनवाज। जी शाहनवाज, 6 नवंबर जी 1992। जी। किस वक्त पैदा हुए? जुम्मा की रात 11 सवा 11 के। 11
11:15 ڈاکٹر صاحب سے بات کیجیے گا اپنے مسئلے کا حل جانیں. محترمہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سبیہ, کیسے ہیں آپ؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. شکریہ بہن, شکریہ. آپ لوگوں کی چاہت کا, پروگرام کو سراہنے کا بہت خوشی لگتی ہے جب آپ لوگ ایسا بتاتے ہیں. تو آپ کو آپ کے بیٹے کے بارے میں جاننا ہے. جی. پیدا ہوا ہے جمعہ کے دن, تھوڑا کھویا کھویا رہتا ہے, کنفیوز رہتا ہے, صحیح فیصلہ نہیں لے سکتا, ڈائلاما میں رہتا ہے, خود کو ہیرو مانتا ہے, آگے والوں کی بات کو کیئرلیس کرتا ہے, لیتا بھی نہیں, جو بتا رہے ہیں سمجھتا بھی نہیں. ساتھ میں تھوڑا ایجوکیشن کو لے کر تھوڑا پریشان ہے. بتا دوں آپ کو, انجینئرنگ کے لیے مفید رہے گا, ٹیکنیکل فیلڈ میں بھیجیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں آگے بڑھے گا. لیکن ایجوکیشن میں تھوڑا پرابلم آئے گا کیونکہ جوپیٹر کمزور ہے. جب جوپیٹر کمزور ہو جاتا ہے, کیونکہ اعلیٰ تعلیم دینے والا, نالج دینے والا, سوچ دینے والا جو ہوتا ہے, جوپیٹر کمزور, جس میں کیا ہوتا ہے, پڑھائی میں رکاوٹیں آتی ہیں, گیان کم ہو جاتا ہے, جو بتاتے ہیں صحیح سے نہیں لیتے, تھوڑا پریشان ڈسٹرب رہتے ہیں, تھوڑا دین سے دوری ہو جاتی ہے, صراط مستقیم سے دور ہو جاتے ہیں. یہ تھوڑا پریشانی دکھا رہی ہے, اس کو سیدھا کیجیے کیونکہ ابھی چھوٹی عمر ہے. دیکھیے یہاں پہ چھوٹی مثال دے دیتا ہوں, کچی لکڑی کو کیسے بھی بنایا جا سکتا ہے. جب عمر چھوٹی ہوتی ہے, بچوں کو ہم سدھار سکتے ہیں, مطلب ایک راستے پر لے کر آ سکتے ہیں. لکڑی ایک بار سوکھ جائے گی, اگر جھکائیں تو ٹوٹ جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے, چھوٹی عمر میں اگر بچوں کو سمجھائیں گے, سمجھ سکتے ہیں, راستے میں آ سکتے ہیں, آگے لے کر جا سکتے ہیں. یہ ایک بار پختہ ہو گیا, عمر بڑھ گئی, بعد میں بولیں گے تو یا تو جھگڑا کرے تو آپ کو چھوڑ دیں گے, آپ کی بات نہیں مانیں گے, مشکلات زندگی میں آ جائیں گے. تو آپ کے بیٹے کے ذائقے میں تھوڑا دین سے دوری, تھوڑا پریشانیاں ہیں کیونکہ جوپیٹر کمزور ہے, جس سے پریشانیاں بڑھ جا رہی ہیں. ساتھ میں دیکھا ہے سن بھی کمزور ہے, تھوڑا گھر کی حالت بے حالت ہے, پریشان ہے. آپ کو اس کے اوپر زیادہ ہوپس ہیں, بہت امیدیں ہیں بچے کے اوپر. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ آپ کی امیدیں پوری ہوں, بچہ صراط مستقیم پر آئے, زندگی میں آگے بڑھے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. لیکن اس پریشانی دور کرنے کے لیے آپ کو چاہیے دوا کے طور پر ایک یلو سفر پکراج کہتے ہیں 3 کیرٹ کا رہنا ہے, ساتھ میں ایک روبی یاقوت کہتے ہیں 3 کیرٹ کا, دونوں بنا کر پہنا. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں خوشی ملے گی, کامیاب رہیں گے. وش یو آل دی بیسٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, بہرحال پروگرام ہمارا ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. میں آپ تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہیں. میں آپ تمام کی جانب سے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی مفید معلومات اور مفید مشوروں سے ہماری زندگی مشعل راہ رہے گی, آپ کے مشورے, اور کامیاب رہے گی زندگی. ڈاکٹر صاحب سے دبئی میں جو حضرات ہیں 25 اور 26 نومبر کو ملاقات کر سکتے ہیں, اور ہندوستان کے جو حضرات ہیں ایوری ویڈنسڈے اور تھرسڈے, ویڈنسڈے وشاکھاپٹنم اور تھرسڈے وجے واڑہ میں آپ ملاقات کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر رضا صاحب کے بھائی صاحب بنگلور میں موجود ہیں, روشن صاحب, ان سے آپ ملاقات کر سکتے ہیں. اجازت چاہتا ہے آپ کا میزبان محمد مظہر قادری. انشاءاللہ پھر کسی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.